Hi guys and welcome back to my YouTube channel. I hope you're all doing great. For all of you जो यहाँ पे नए हैं, hello, my name is सुखमनी. मैं चंडीगढ़ से सरी आई हूँ. अब 5 महीने हो गए हैं. इंडिया में I was working as a lawyer. I was a lawyer back in India in Chandigarh, and यहाँ पे I am working as a legal assistant. If you are interested in finding out how I got my first job, the video is already up. I will put the link in the description box below. For all of you who are coming back to my channel and keep on giving me your support, please know that I really appreciate it. For all of you who keep on flooding my DMs with questions, with positive news, updates, I love getting these messages, and I hope more and more of you have your applications done and dusted, and I hope I will see some of you someday here in Canada. Today's video is very important क्योंकि this is kind of like the make or break of your application, and उसको कितना time लगेगा इस चीज़ के लिए ये वीडियो बहुत important है, because in this video, as you must have read from the title, I am going to be talking about what are the things that you need to do before you submit your spousal sponsorship application for Canada. So let's get into it. तो सबसे पहले I want to talk to you guys about the content of the forms. I know it's a lot of paperwork and it gets annoying, it gets difficult, you get irritated, frustrated, but it's very important that you keep proofreading your form. सबसे major reason why applications are returned generally is because जो applicant होता है वो भूल जाता है कहीं पे पिन कोड लिखना या कहीं पे साइन करना भूल जाता है. तो when you are about to upload your submit your application, be sure कि आपने हर एक चीज़ चेक करी है, हर एक स्पेलिंग मिस्टेक, स्पेशली अगर नाम की मिस्टेक हो गई, they will reject your application. कोई कहीं पे पिन कोड मिस हो गया, कहीं पे आपने अपना एड्रेस गलत लिख दिया, because when you read the forms, काफ़ी सारे ऐसे questions होते हैं जो बहुत similar होते हैं. You have to know it's all they want to create a tricky situation because they want to confirm your story. You have to be sure कि जो भी similar sounding questions है उनका answer same हो. जैसे for example in the form somewhere they ask you कि if both the parties are physically present during the time of the marriage, right? अब अगर relationship story में आपने लिख दिया कि नहीं वो वहाँ थे मैं यहाँ थी, हमने अपना अपना sign कर दिया, जो भी किया और शादी हो गई, it's problematic, right? Because contradict कर रहा है. तो सबसे पहले we need to be sure that all our answers match. कोई contradiction नहीं हो रही है, कोई problem नहीं है, कोई spelling mistake नहीं है. More important, कहीं साइन मिस नहीं हो रहा, कहीं पे डेट गलत नहीं लिखी है, कोई पिन कोड मिस ना हो जाए. सो ऑल ऑफ दीज थिंग्स टेक्निकल एस्पेक्ट से यू नीड टू बी अवेयर, एंड आप उसको 10 बार पढ़ो, 15 बार पढ़ो, कोई प्रॉब्लम नहीं है. आप 2 दिन एक्स्ट्रा ले लो, बट बी श्योर कि आप कंप्लीट एप्लीकेशन सबमिट कर रहे हो. अगर कंप्लीट नहीं है तो वो 3 महीने बाद, 4 महीने बाद जहाँ आपको AOR मिलना था वहाँ पे आपको रिजेक्शन आ जाएगी या रिटर्न आ जाएगा. उससे बेटर है कि आप 2 दिन 3 दिन एक्स्ट्रा ले लो एंड आप अपनी एप्लीकेशन अच्छे से कंप्लीट करके सबमिट करो. अब इससे आई कम ऑन द सेकंड पॉइंट. सो अ लॉट ऑफ पीपल आस्क मी कि हु अप्लाइज, हु अपलोड्स द डॉक्यूमेंट्स, एंड आई ऑलवेज से कि देखो स्पॉन्सर के पास भी एक्सेस है और प्रिंसिपल एप्लीकेंट के पास भी है, बट to me, I would say आप दोनों में से whoever has more time on their hands, जैसे मेरे केस में I had more time since I was not in a very strenuous job in India. जो भी मुझे मेरे हस्बैंड के डॉक्यूमेंट्स चाहिए थे, उनका PR कार्ड हो गया, टैक्स असेसमेंट स्टेटमेंट्स हो गई, इस टाइप की चीज़ें, ही जस्ट ईमेल्ड दोज टू मी, एंड देन इट वाज ऑन मी कि मैंने उसको कैसे लिखना है, कैसे उसको अपलोड करना है.
बट देन एटलीस्ट वन पर्सन हैज़ फुल कंट्रोल, राइट? हम दोनों में से किसी एक बंदे को पूरी अवेयरनेस है कि वो सिचुएशन में क्या हो रहा है, एग्जैक्टली कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स अपलोड किए गए हैं. So you have to talk about this amongst yourselves and figure out कि who wants to be the one जो कि सारे के सारे forms upload कर रहा है. Yeah. So coming to the third point, how to upload your documents. अब जब आप online apply करते हो ना for the spouse visa PR, यू हैव टू नो कि डॉक्यूमेंट जो फाइल नेम होता है ना वो स्पेसिफिक होता है. यू कांट जस्ट बी लाइक रैंडमली लाइक document 1, document 2, document 3. नहीं. फॉर एग्जाम्पल इट वुड बी माई लास्ट नेम एंड देन माई फर्स्ट नेम एंड देन पासपोर्ट, यू नो, सिंह, सुखमनी, आधार कार्ड, और लाइक शर्मा, आदित्य, vaccination certificate, like that. Surname, first name and जो भी डॉक्यूमेंट का नाम है, ऐसे करके आपने अपने सारे के सारे डॉक्यूमेंट्स अलाइन करने हैं. अब इससे हम आते हैं कि किस ऑर्डर में अलाइन करने हैं. तो इसके लिए द डॉक्यूमेंट चेकलिस्ट कम्स इनटू प्ले. डॉक्यूमेंट चेकलिस्ट में जिस हिसाब से भी डॉक्यूमेंट्स का मेंशन किया हुआ है ना कि सबसे पहले ऑफ कोर्स पासपोर्ट होता है, कोई बर्थ सर्टिफिकेट होगी, जैसे आपका जो 0008 फॉर्म है उसमें जिस ऑर्डर में चीज़ें मांगी गई हैं उसी ऑर्डर में आपने प्रूफ लगाना है ना कि अच्छा मेरा पासपोर्ट नंबर मैंने फॉर्म में ये लिखा है IIM 0008 में मैंने ये लिखा है कि माई नेशनैलिटी इज़ इंडियन एंड दिस इज़ माई पासपोर्ट नंबर. सो यू attach your passport, right? So you attach your passport. For date of birth you attach your birth certificate. For Indian identity you attach your Aadhaar card. So it will go on like that. And it's very important to keep a record for yourself also, so that आपको भी पता हो कि आपने क्या upload किया है. I don't know how many of you know this, but once you submitted your application आप उसको खोल के चेक नहीं कर सकते कि आपने क्या भेजा है क्या नहीं भेजा है, which is a drawback because जब 3-4 महीने बाद AOR आती है या नहीं आती, कोई इशू होता है, तो you can't really see your file, right? कि आपने क्या exactly attach किया था. Sometimes it can cause a problem because you don't remember and maybe you need to see something. So it's always better to have a digital copy of every single thing. अब इससे हम आते हैं, आई थिंक नाउ दिस इज द फोर्थ पॉइंट, हाउ टू गेट योर डॉक्यूमेंट्स ऑन टू योर सिस्टम. फॉर मी आई स्कैन्ड एवरी सिंगल थिंग जो मुझे अपलोड करनी थी. ऑफकोर्स कुछ ऐसे फॉर्म्स होते हैं जो आपने ऑनलाइन ही अपलोड कर फिल करके सेव करने होते हैं, दैट इज़ डिफरेंट. उसके अलावा जो मैंने अपनी एजुकेशन क्वालिफिकेशंस, मेरा टैक्स असेसमेंट, जजेस के रिकमेंडेशन लेटर्स, यू नो, मेरे हस्बैंड के टैक्स असेसमेंट, हिज PR कार्ड, आवर पासपोर्ट्स, हिज एंट्री एग्जिट स्टैम्प्स, माई वेडिंग्स अकाउंट, लाइक पूरा एक्सपीरियंस, मेरे फ्रेंड्स के लेटर्स, देयर सोशल मीडिया पोस्ट, मेरे रिश्तेदारों के सोशल मीडिया पोस्ट, माई वेंडर, माई लहंगे वाली या ज्वेलरी वाली, हर एक बंदे ने कहीं भी कुछ मेंशन किया हो, आई टुक पिक्चर्स, आई मेड कोलाजेस एंड आई मेड श्योर कि जो बंदा देख रहा है उसको ऐसा लगे कि ये मेरी शादी पे आया था एंड ही कैन जस्ट फील द लव. सो यू हैव टू बी वेरी केयरफुल कि आप अपनी पेजेस कैसे स्कैन कर रहे हो. इसको करने के 2 तरीके हैं. वन इज़ वेरी सिंपल कि जैसे फॉर एग्जांपल फॉर योर फोटोज़ कि आपने वो A4 लिया और उसमें 2 फोटोज चिपकाए और नीचे कैप्शन लिख दिया एंड यू गेट दैट स्कैन्ड. अनदर थिंग यू कैन डू इज़, क्योंकि सबको हैंड राइटिंग नहीं समझ में आती है, तो आप ऐसा भी कर सकते हो कि वर्ड डॉक्यूमेंट में जाओ, फोटो डाली, नीचे कैप्शन, टाइप इट आउट एंड मेक इट इनटू अ PDF एंड अपलोड दैट. थोड़ा सा कंप्रेस करके, थोड़ा सा कंप्रेस, नॉट इतना कंप्रेस कि उसकी क्वालिटी ख़राब हो जाए, आपकी शक्लें ना दिखे, बट इतना कंप्रेस कि वो उतना ज़्यादा हैवी ना हो. तो यू हैव टू डिसाइड हाउ यू वांट टू गो अबाउट इट. And you have to be sure that you're using a very good quality scanner
जिसमें कोई गंद नहीं है, कोई फॉर्म पे जो इंक है वो ज़्यादा थिक नहीं हो रही है, इट्स स्टिल लेजिबल, इट्स गुड टू लुक एट. You have to be very careful about all of that. So I think that is pretty much it, but just to recap it, be very careful with the content. Number 2, one person should be in charge of the documents that are being uploaded. Number 3, how to upload the document, last name, first name, and then the document name. जैसे कि Singh, Aditya, passport, like that. And you have to be careful कि जो स्कैन डॉक्यूमेंट्स हैं उनकी क्वालिटी इज एक्सीलेंट. अब इसके बाद इफ़ यू हैव एनी क्वेश्चंस, एनीथिंग विच यू हैव डाउट्स अबाउट कि ये कैसे करना है, वो कैसे करना है, एप्लीकेशन के मामले में कि एप्लीकेशन रिलेटेड बिफोर सबमिटिंग what you're supposed to check, what all you're supposed to read 100 times. If you're still not sure, or if you think that I have missed a point, please feel free to comment in the comment section and tell me. And of course, if this helped तो आप वो भी बताओ, अगर आपको वीडियो informative लगी तो आप वो भी बताओ. And yeah, I will see you soon. Guys, editing करते हुए I realized that I forgot to mention one thing. Even if आप किसी एजेंट के थ्रू अप्लाई कर रहे हो, it is 1000% recommended कि आप एजेंट के साथ बैठ के हर एक चीज़ प्रूफ रीड करके अपनी फाइल सबमिट करो. Many people message me saying कि एजेंट ने बोला कि ये चीज़ मिस हो गई थी तो कोई बात नहीं, मैंने कुछ और करके कुछ कर दिया है, इज इट ओके, ए और आएगा नहीं आएगा, टाइम कब से शुरू होएगा, दैट काउंट डाउन फॉर हाउ लॉन्ग इट्स बिन सिंस यू ऑफिशियली सबमिटेड योर एप्लीकेशन. It's always better to proofread yourself and sit with the agent जब एजेंट आपकी एप्लीकेशन सबमिट कर रहा है, सो दैट यू आर 100% अवेयर कि एग्जैक्टली क्या चीज़ सबमिट की गई है, क्या चीज़ नहीं सबमिट की गई है, ताकि इफ़ एंड आई होप कि कोई प्रॉब्लम किसी को ना आए, बट इन केस किसी को कोई फ्यूचर में प्रॉब्लम आती है तो दे शुड बी 100% अवेयर कि एग्जैक्टली हुआ क्या था. That's it. That is the 5th point. Okay, bye.